Good morning, sir. 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 Good morning, all of morning. you. Good morning. Chapter is complete. Good morning, everyone. Chalo, bhai. The chapter that we are starting today is chapter number 13, lines and angles. Yes, sir. Chapter 13, So lines and angles. Okay. Ready? You can write down the name of the chapter. Okay. Chapter number 13. Sir, written. Okay. just 1 minute. Okay, so the first thing, before starting the exercises and everything, I will be explaining some important, very important terms related to the chapter. ठीक है? तो वो सारी terms बताने से भी पहले ये पहले बता दूं कि what you have studied about lines and angles in your previous classes. Okay. Do you know how to name an angle? Tell me what is the name of this angle. Yes, sir. A, O, and B. Angle AOB. The name of this angle is angle AOB. ठीक है? So we always write the vertex at which the angle is joined to. Angle यहाँ पर vertex O से जुड़ा हुआ है. That means we will put the letter O in between. Middle में रखेंगे O को. We will keep the letter O in middle, and then we will give the name of the angle as angle AOB. Understood? ये आपने previous classes में भी पढ़ा है. How to name the angles. So naming is clear. Let me give one or two more examples of naming the angles. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. Yes, it's clear. A, B, C, D, E. So can you name this angle? Sir, is it compulsory to name that point O? Yes. Sir, A, C, B, D, नहीं, E. not compulsory. जरूरी नहीं है कि मैं अगर मैंने A, O B, लिखा है, C. A, C, B, E. तो the name A, of B, this angle, C. A, B, D.
Angle ABC. ABE. Angle ABC. पहला वाला देखो बेटा. This is angle ABC, ABG. अब here Angle. the angle is joined to vertex B. कौन से vertex से जुड़ा हुआ है? Vertex B से जुड़ा हुआ है. So therefore the name of this angle is angle ABC. बीच में मैंने लेटर B को लगाया है. अब A और C क्यों लगाया? Because the angle is starting from A, then we are going to B, and then we are ending at C. So ABC. In AB और BC ये दो hands हैं, इन दोनों के बीच का एंगल है. So that is why I have named the angle as angle ABC. Now can you name this angle? AB. Angle CBD. Angle CBD. CBD लिख सकते हैं. एक और तरीका है लिखने का. We can also name it as angle DBC. दोनों तरीकों में आप देखेंगे कि फिर से मैंने लेटर B को बीच में लिखा है. लिखा है मिडिल में. बताइए. Yes, sir. Letter B is coming in Yes, middle. sir. Yes. Okay. Can you name the last one? This angle. What is the name of this angle? DBE. Yes, angle DBE. Angle DBE. DBE. Can I also call it as angle EBD? Angle EBD बुला सकता हूँ मैं इसको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can also call it as angle EBD. Yes, sir. Okay. चलो एक और चलिए. One more example of naming the angles. A B X. What is the name of this angle? Name of this angle. This is a triangle. APX. This is a triangle. APS. Can you name this triangle? Sir, the angle is ABX. Angle APX. This is angle APX. Angle APX. Yes. This is angle APX. Fine. Angle Fine. Yes. Is it fine? Everyone? Yes, sir. सारा पढ़ाया लिखा सब बेकार हो गया. Yes, sir. सब पानी में डाल दिया. सब पढ़ाया लिखाया. बच्चों ने सो रहे हैं. अभी नींद नहीं खुली है सही से. ये कौन से वर्टेक्स पे जुड़ा हुआ है एंगल? दिस इज नोन एज वर्टेक्स. कौन से वर्टेक्स पे एंगल जुड़ा हुआ है? ये वाला वर्टेक्स दिख रहा है आपको? दिस इज वर्टेक्स ए. A. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वर्टेक्स ए? और मैंने क्या Vertex बोला था? जिस वर्टेक्स से एंगल जुड़ा होगा उस लेटर को आप बीच में लगाएंगे, मिडिल में लगाएंगे. अभी अभी बोला था मैंने. तो दिस इज द राइट नेम और नॉट? Yes, sir. ये सही है? No, sir, Absolutely it's गलत. not the right one. It will What is be the what PAX. is? This should be angle PAX. PAX. आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. The vertex will be in between. हाँ. तब Now X और X. Yes. हाँ XAP भी बुला सकते हैं. PAX XAP. और एंगल XAP. आज वृंदा का वो बज रहा है आज गिटार. वृंदा आज आपके नेटवर्क सही नहीं आ रहे. यस सर. सर पता नहीं मेरा ब्रेक में ही नेटवर्क खराब हो गया था. अच्छा ब्रेक में ज्यादा खा लिया लग रहा है तुमने. नो सर एक्चुअली नेटवर्क खराब हो गया था उस टाइम. सर ज्यादा मैं खाना. खुद ही नहीं देख. सर नॉर्मली सब कुछ हैक हो रहा है. नॉर्मली लोगों का ज्यादा खाने से पेट खराब होता है. वृंदा का नेटवर्क खराब हो गया. चलिए वृंदा एक काम करो, कैमरा ऑफ कर लो तो देखो सही आ जाएगी आपकी आवाज. वीडियो ऑफ कर लो आप अपनी. हो गया. So now you all everyone, can you name this angle now?
Yes, So sir. APX. एंगल AP। APX. हाँ, अब सही है। देखिए P को हमने बीच में लगाया, ठीक है, एंगल APX। चलो फाइनली this one, what is the name of this angle? Name of this angle? So PX. Sir, this angle is Sir, AXP. AXP or PXA. और AXP or sir, एंगल it can be PXA. PXA, दोनों ठीक है। You can also call this angle as angle AXP or angle PXA, दोनों ठीक है, ठीक है, फाइन। Yes, sir. चलो एंगल की नेमिंग आ गई बच्चों को। देखिए इतना जरूरी काम जो क्लास 5 में आपने सीखा था, अब क्लास 7 में आ गए हैं। अरे भाई ये तो नया कलर दिख रहा है कुछ, ये ट्राई करें। तो यही है, सेम है ये, और ये सेम कलर है। No, sir. No, No, sir. sir. Both Different No, है? sir, a little bit different. Sir, that one, sir, the lines and angles one is greenish blue and this is blue. This is Sir, blue. I that feel is they blue. are Sir, both same. Sir, I'll- Karthik Bhaiya was saying that he has clapped a lot in your class. He had clapped a lot in my class when he was there in class 8. Yes, sir. For what Yes, reason? sir. For what reason he clapped? Just like that, Sir, I don't without know. He without said any that reason. he has clapped a lot in your class. Without any reason. Ask him why he clapped. Afterwards, you can ask. Okay, sir. In his class, the boys were very naughty when he was in class 8th. I remember the boys of his class were very Yes, naughty. sir. Even the girls, even the girls. Some of them. Chalo. Sir, the pen between yellow and red was looking like there is no pen color. Yellow Yes, and sir. So the white one. Sir, this the one. white one. This one. Yes, sir. This is not working. I don't know why. I'm trying to write, but it's not showing anything. See, now it is visible. So I think it's highlighter. Maybe. Highlight भी तो नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं। Yes. चलिए, so the next thing that we are going to study is adjacent angles. This is very important. Don't write this in your copies. Copy में लिखने की जरूरत नहीं है, Okay. अभी नहीं है। मतलब adjacent angles क्या होते हैं? देखिए A, B, C, O. बेटा हानिया, you are enjoying a lot with your sister. वीडियो ऑफ कर लिया, नहीं अच्छी बात है। You can play with your sister. देखिए so angle AOB, ये वाला एंगल, एंड एंगल BOC, ये वाला एंगल, क्या नाम है इसका? इस एंगल का नाम है एंगल AOB एंड एंगल BOC। POC. अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा। कॉमन वर्टेक्स मतलब मिडिल पॉइंट, मिडिल में जो लेटर आएगा दोनों का सेम आ रहा है। देखिए एंगल AOB में मिडिल में क्या आ रहा है? O। एंगल BOC में मिडिल में क्या आ रहा है? O। दैट मींस दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एम आई राइट और नॉट? दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है। क्या है कॉमन Yes, वर्टेक्स? sir. O। O इज द कॉमन O. वर्टेक्स। ओके। Oh, एंड एक और चीज होती है, दोनों की एक बीच वाली जो दीवार होती है
यानी कि हैंड, कॉमन हैंड होता है एक दोनों का, कॉमन हैंड, कॉमन आर्म, कॉमन कुछ भी बुला लीजिए आप, ये जो है दिस इज नोन एज ओबी। ये क्या है, अभी ये जो बीच वाली जो हैंड है, इस हैंड का नाम क्या है, ओबी, इसका नाम है ओबी। So they OB. these both these angles have a common hand. वो common hand कौन सा है, OB. Am I right or not? है। Yes, sir. तो Yes, sir. ऐसे तो एंगल्स अगर किसी जिनका के दो कॉमन हैंड होते हैं तो दो कॉमन हैंड कैसे हो सकते हैं बताओ। जैसे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जैसे एक एंगल ये हो गया और दूसरा इसी के ऊपर हो गया, ये और ये दोनों कॉमन हो गए, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है, फिर तो वो सेम एंगल नो ही हो सर, जाएगा। सर लाइक इसमें 3 आर्म्स हैं सर, हाँ, उसमें तो ज्यादा आर्म्स हुए तो फिर जैसे कि ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला एंगल यस। एंड ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स के का एक कॉमन वर्टेक्स है, वो ये है, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स, एंड कॉमन हैंड जो है वो यही है। तब भी दो नहीं होंगे, एक ही होगा दोनों के बीच वाला, ओके। अगर ओके सर। इफ यू हैव मोर लाइंस मेड इन अ फिगर, देन ऑल्सो इफ द एंगल्स आर एडजेसेंट, उनकी सिर्फ एक ही कॉमन हैंड होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सो ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है एंड दे हैव अ कॉमन हैंड या फिर कॉमन आर्म, these type of angles are known as adjacent angles। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एंगल AOB and angle BOC are adjacent angles। कौन से एंगल्स हैं ये, these are adjacent angles। समझ में आया adjacent angles क्या होते हैं। अब इसका मैं आपको एक यस। So, एग्जांपल sir, देता हूँ। means the vertex will be in between. हाँ, वर्टेक्स जो होगा बीच में होगा उनके, मतलब they Okay, will sir. both the angles will, when you name the angles, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर आपने नेमिंग सही से करी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों में बीच वाला लेटर सेम आएगा, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर भी ओ आ रहा है, आ रहा है। तो दैट मीन्स द टू एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ओके। नाउ हम्म यस, लेट मी गिव यू एन एंगल एग्जांपल कि एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल चिपका हुआ है, पड़ोसी, बिल्कुल ऐसा पड़ोसी जो बिल्कुल चिपका हुआ है। जैसे आपका घर है, आप आपके घर के बगल में कोई मिश्रा जी, शर्मा जी, या फिर सक्सेना जी, अग्रवाल जी, गुप्ता जी कोई रहते होंगे, खान साहब कोई रहते होंगे, टंडन साहब, कपूर साहब, जो भी रहते हैं बगल में, सबके घर में कोई ना कोई, घर के बगल वाले घर में कोई रहता है। सो आपकी और उनकी एक कॉमन वॉल होगी, एक वॉल बीच वाली जो है वो सेम होगी, मतलब बीच में एक दीवार होगी आपके और उनके घर के बीच में। तो दैट मीन्स वो जो बगल वाला घर है वो आपका एडजेसेंट हाउस हो गया, समझ में? योर हाउस एंड बगल वाला हाउस, जो मिश्रा जी वाला जो हाउस है, आप दोनों का जो हाउस है, दैट इज, these two houses are adjacent houses, okay, understood। समझ में Yes, आई sir. मेरी बात। यस Yes, सर। sir. तो यही सेम केस यहाँ पर है। समझ में आ गया बेटा एडजेसेंट एंगल सबको। Yes, sir. यस। Nicely. चलिए, यस सर। I will draw a figure here and you will name the adjacent angles in this। मैं पूछूंगा मतलब ये adjacent angle है या नहीं है, आप बताना। हम्म, ओके सर। So I am talking about angle AOB and angle BOC are the two angles, angle AOB and angle BOC. Are these two angles adjacent or not? यस सर। यस Yes, सर। Sir. they दे are आर Yes, adjacent. sir. दे आर एडजेसेंट। Yes, they are adjacent because they have a common vertex। Common vertex कौन सा है दोनों का? ओ सर, O. सर ओ। O is the common vertex and common arm कौन सी है दोनों angles की?
कॉमन हैंड कौन सा है? Sir, when सब sir, B when B ओबी। कॉमन हैंड जो उसका नाम क्या होगा? ओबी। ठीक है, ओ OB, से स्टार्ट हुआ और बी पे खत्म हुआ तो ओबी। द कॉमन हैंड इज OB ओबी। and OC. नहीं, ओबी, केवल ओबी तो कॉमन है। एंगल एओबी और एंगल बीओसी को देखो बस, है नहीं है दोनों। Okay, sir. ओके, चलिए एक और पेयर मैं Okay, पूछता हूँ, वन मोर। एंगल ये वाला एंड एंगल ये वाला, दैट मीन्स एंगल एओबी and angle COD. These are adjacent. yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Angle AOB and angle COD are also adjacent angles. Adjacent. Yes, बेटा sir. कोई बच्चा एक ग्लास ऑफ वाटर ले आओ प्लीज मेरे लिए। Sir, मैं लाऊं? पीने के लिए नहीं चाहिए मेरे को, मुझे उसमें डूब के मरना है। बेटा ये बताओ इन दोनों एंगल्स में, देखो No निशु sir, मुझे sir पानी because देगी। sir इन because B is not in the second one. दोनों No, sir, angles because में there is no common करेक्ट Yes sir. सो दोनों का कोई कॉमन common वर्टेक्स, नाम नहीं है, but vertex they have a common vertex but they don't have a common arm. इनकी कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन हैंड नहीं है, इसीलिए हम इन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स नहीं नहीं कहेंगे। नहीं बोलेंगे। दीज आर नहीं। नॉट एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आ गई बात या नहीं आई? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? क्लियर हो गया? Yes sir. Yes, sir. चलिए Yes sir, got it. एक फिगर और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है? This is the figure. Suppose the name of the figure is ABCD. It is a quadrilateral. हाँ, एंगल क्या नाम है इसका, जरा नाम बताना। ये वाला एंगल जो मैंने मार्क किया है, So which one? दिस एंगल, ये वाला, इस एंगल का नाम क्या Angle BACD. है? The angle DAB. BAD, एंगल BAD, बैड एंगल। या फिर सर DAB. हाँ, DAB भी बुला सकते हैं, डैब, या फिर BAD बैड भी बुला सकते हैं। So this angle Yes. is a bad angle, ठीक है? What is the name of this angle? Angle ABC, ठीक है? ABC. Sir, I'm rejoining the meeting because I'm not able to hear anything. Okay, okay, okay. किसने रिजॉइन करा? निशु? Sir, Nishu. Sir, Brenda. निशु आई थिंक। No sir, I am here only. निशु, is she back? Where is my phone? Yes, Just a sir. minute. हाँ बेटा। Yes sir, she is here. हाँ, so the two angles, the first angle is angle BAD, the second angle is angle ABC. आपको सिर्फ इतना बताना है, are the two angles adjacent or not? No. No. Sir, because there is no common vertex. कहीं से Yes, कहीं sir. तक भी दोनों नहीं, There is But sir, common arm है. इनका कॉमन आर्म है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है। देखिए बीच वाला लेटर साफ साफ दिख रहा है, दोनों का बीच वाला लेटर क्या है, अलग अलग है। इधर ए है, उधर क्या है, बी है। एक Yes. एंगल में मिडिल में ए आ रहा है, दूसरे एंगल में मिडिल में बी आ रहा है, देयरफॉर दे आर Yes, sir. दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है? कॉमन हैंड है दोनों का, कॉमन हैंड ए बी है, दोनों में एक कॉमन हैंड आ रहा है ए बी, तो कॉमन हैंड है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, सो देयरफॉर दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया बच्चों को? एडजेसेंट एंगल बता रहे हैं। Yes, sir.
Yes, sir. चलिए, so Yes, sir. now the next thing that we will learn is ये क्या हुआ? चलो, the next thing is a linear pair of angles. ये इतने आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ ज्योमेट्री. आपके सिलेबस में अभी ज्योमेट्री अभी स्टार्ट हुई है, ये समझिए. बचपन में आपने जो ज्योमेट्री पढ़ी है क्लास 5, क्लास 4, क्लास 6 में, वो तो सिर्फ थोड़ा सा खेल था. दैट वाज जस्ट द ट्रेलर. तो अभी ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट होती है थोड़ी बहुत. अभी जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो गए, अगर ये जो बेसिक्स हैं ये आपके अगर स्ट्रांग नहीं होंगे, मतलब अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी. और अगर समझ में आ जाएंगे देन ज्योमेट्री, बिलीव मी, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ज्योमेट्री जो होती है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इजी भी बहुत होती है. ठीक है, बस अगर बेसिक्स क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या होता है? So whenever I'm teaching something like this, which is very important for your higher classes, I take my time for that. Okay, आराम आराम से पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए और फिर बच्चे याद करें कि हमें किसने पढ़ाया था. ठीक है, इसलिए देखो काजी आज तक मुझे याद करता है, भले ही जहरा से मेरी बुराई करता हो. Yes, sir. बुराई करता है मेरी No, जहरा? sir. कोई बुराई नहीं करते. No. चलिए, सो एंगल, सॉरी, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Okay, just a minute. Okay, sir. Okay, so angle, sorry, we are talking about these two angles. So first of all, I'm naming the angles again. This is angle AOC and this is angle BOC. Okay. Are the two angles adjacent angles? चले तो ये बताओ. ये दोनों angles adjacent हैं? Do they have a common vertex? Common Yes, vertex sir. है? They do have a Yes. common vertex They and a Yes, have common sir. arm. yes, they do have a common vertex and they have a common arm as well. So O is the common vertex and OC is the common arm. Therefore, angle AOC and angle BOC are adjacent angles. Are the two angles linear pair of angles? अब ये linear pair क्या होता है? सिर्फ यहाँ पर linear जो word लग गया है, तो ऐसे adjacent angles जिनकी जो which lie on a straight line, एक straight line पर अगर दो adjacent angles होते हैं, अभी यहाँ पर मैंने adjacent angles ऐसे बनाए थे, यहाँ पर पीछे ऐसे कुछ बनाए थे. तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स तो हैं ये दोनों, Yes, sir. बट ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है. इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन है. द टू एडजेसेंट एंगल्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो जब ऐसा हो जाता है दैट मींस ये एक स्पेशल केस हो गया. सो वी विल कॉल दीस टू एडजेसेंट एंगल्स एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्या बोलेंगे इनको? Linear Linear pair pair of of angles. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. समझ में आ गया? एडजेसेंट एंगल्स का ही स्पेशल टाइप है लीनियर पेयर. Yes, बस sir. क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे अगर होंगे तो लीनियर पेयर बन जाएंगे. ठीक है. sir ये बड़ी equal to 180 degree. हाँ, बड़ी खास बात होती है लीनियर पेयर में. आपने एक चीज पढ़ी थी बचपन में, अगर याद हो. बचपन की पढ़ाई तो याद ही नहीं है बच्चों को. ये दिस एंगल इज क्या, ये एंगल का मेजर क्या होता है? व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? 180. 180 तो डिग्री 180. होता है. 180 डिग्री होता है. 180 degree. सो ये दिस एंगल इन दिस फिगर, दिस इज आल्सो 180 डिग्री. ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा 180 डिग्री. 180 degree angle. तो कैन आई से दिस एंगल AOC, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज.
अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं, इस वाले को और इस वाले को, तो 180 आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. यस। No, sir. Yes, नो, sir. व्हाई नहीं? Yes, अरे बिल्कुल sir. आएगा। यस, these two angles are linear pair of angles and their sum will be 180 degrees. So whenever the two angles are linear pair, so it is a guarantee that their sum will be 180 degrees. तो पहली बात तो अगर आपने लीनियर पेयर पहचान लिया, are the two angles are linear pair, तो जैसी पहचान लीजिए वैसी एक बात और आप कह सकते हैं उनके बारे में। क्या कह सकते हैं? that the sum of the two linear pair of angles is always 180 degrees. Okay, sir. Is it clear? Okay. Yes, Yes, sir. sir. Yes, okay. So this is a very important property that, क्या बोला मैंने अभी? The sum of linear pair of angles is 180 degrees. याद रहेगा? क्या बोला मैंने? फिर से बोलिए, आप लोग बोलेंगे। क्या बोला मैंने? The sum Sir. of the sum of The sum of both of Linear pair is always 180 degree. yes, the sum of linear pair of angles is 180 degrees. ठीक है, चलिए next property. So these are some properties related to lines and angles जो हम पढ़ रहे हैं, properties which will be used in your exercises. The next property is vertically opposite angles. Vertically opposite. Opposite angle. ये गंदी राइटिंग भगवान किसी को न दे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शर्म आती है मुझे, और सबसे ज्यादा मुझे ही लिखना पड़ता है बोर्ड पे, कोई टीचर नहीं लिखता है इतना। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये कब पैदा होते हैं? पैदा होते हैं ये व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। क्रॉस बन रहा है यहाँ पर बेटा, बताओ। Yes, sir. So whenever two lines cross each other, then जैसे लाइन ए बी ने लाइन सी डी को क्रॉस किया, तो मान लो ये वर्टेक्स, दिस इज ओ, दिस पॉइंट, एट द पॉइंट दे आर मीटिंग, दिस इज ओ। सो व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर बॉर्न मतलब पैदा होते हैं, पैदा हो गए। ठीक है, देखिए पैदा हो गया। दिस इज एंगल AOC, एंगल AOC, एंड दिस इज एंगल BOD। तो ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे होते हैं, whenever two lines cross each other and the angles which are opposite to each other are known as vertically opposite angles। Vertically Simple opposite चीज। angles. Simple Vertical चीज नहीं opposite है? angle. हाँ जी, सिंपल है। Yes, sir. Yes, So sir. this is a pair, हम इसको क्या बोलेंगे? This is a pair of vertically opposite angles. Is there any other pair of vertically opposite angles in the same figure? क्या एक और पेयर है यहाँ पे vertically opposite angles का सेम फिगर में? So we can make a plus. हाँ, वो तो प्लस तो बना सकते हैं, Yes, लेकिन sir. इसी मैं पूछ रहा हूँ, क्या इसी फिगर में कोई और So पेयर COD, Sir, AOD. Sir, COD Sir, AOD. एंगल AOD एंड and angle BOC। CO. Sir, angle BOD. BOC and angle AOD are also vertically opposite angles। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? Okay, There sir. are, so can we say that there are two pairs of vertically opposite angles in this figure? Yes, we can say this. So angle, एक और खास बात, अब जैसे लीनियर पेयर में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, कि उनका सम कितना था? What is the sum of 180 linear pair of degree. 180 degrees। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। एंगल AOD और एंगल BOC ये दोनों इक्वल होंगे। Whenever two angles are vertically opposite, they are equal to each other। उनका सम 180 नहीं होगा, बट वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। Similarly, the other pair, दूसरा वाला पेयर क्या है भाई? Second pair is angle AOC is equal to angle BOD। ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो इफ मैं अगर मैं सपोज आपको बता देता हूँ दिस एंगल इज 70 डिग्रीज, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOD? एंगल BOD बता सकते हैं? कर मैं आपको दे देता हूँ दैट एंगल AOC is 70, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOD? बताओ। So सेम एज एंगल AOC, that Same means as हाँ, तो कितनी हो जाएगी? ये भी तो 70 होगी। अंडरस्टूड?
अगर ये 70 है तो वो भी 70 हो जाएगा। चलो एक और चीज, अगर मान लो इफ एंगल मैं आपको बताता हूँ, एंगल एओडी इज मान लीजिए 110 डिग्रीज, तो एंगल बीओसी कितना होगा? एंगल बीओसी कितना हो जाएगा? So same. सेम 110 डिग्रीज। ठीक है, ये लिखा तो है प्रॉपर्टी, ये लिखी है मैंने। क्या स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, क्या खास बात होती है इनमें? दैट That so that they they both are are having. equal, they both are Yes, equal to sir. each So other। they जब are भी कोई equal. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, Yes, sir. So प्रॉपर्टी क्लियर? Sir, yes, so sir. can we say when they are overlapping? सॉरी, So sir, can we say that when they are overlapping, then also they are called vertically opposite angles? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कैसे, कहाँ पर ओवरलैपिंग होती है? तो ऊपर ओवरलैप कर देंगे प्लस के लिए। So I'm giving you the permission to write here on the board. Can you draw it and tell me? ट्राई करो ड्रॉ, एंड आपको एक Okay, sir. एनोटेट करके एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, ड्रॉ करो। Yes sir, like this overlapping, जैसे ये सब ये overlap कर रही है लाइन इसके So ऊपर। in this So means figure, ऊपर this से angle, cross करेंगे. this and this, these are vertically opposite angles। ये वाला और ये वाला, they are vertically opposite, and this angle, these two angles are also vertically opposite, ये वाला और ये वाला। Vertically. ठीक है, समझ में आ गया? Okay sir. So there are two pairs of vertically opposite angles again। So जब भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दो पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। ओके,